میرے ہاتھ میں ایک بیمار بچہ تھا اور میری آنکھوں کے سامنے کمزور تھکی ہوئی سانس۔ کمرے کے کونے میں رکھے ٹوٹے سے چولہے پر چائے کا پتیلا رکھنا بھی اب کئی دنوں سے بھول چکی تھی۔ وہ چولہا شاید اسی دن سے سرد پڑ گیا تھا جب میرے شوہر کی لاش اس دروازے سے اندر آئی تھی۔ اب اس گھر میں دھواں صرف دکھ کا رہ گیا تھا اور اس کی سیاہی ہماری سانسوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ بچے کو چپ کروا لے، وہ کب سے رو رہا ہے، ساس نے رخ میری طرف کیے بغیر کہا۔ ان کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے کبھی محسوس کی جاتی تھی، بس ایک تھکن تھی، جیسے کوئی ریت میں دھنستا جا رہا ہو۔ اماں، کب سے سلانے کی کوشش کر رہی ہوں، بہت بھوکا ہے اور دودھ کا تو ایک قطرہ بھی نہیں میرے اندر جو دے سکوں۔ میری آواز خود مجھے اجنبی لگی، جیسے کسی اور کا دکھ میں سن رہی ہوں۔ میرے بیٹے کا نام ہم نے فہد رکھا تھا، وہ بھی 1.5 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی بھوک کی شدت جسے ہر دن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے دوپٹے کو پکڑ کر اپنے منہ تک لے جانے کی کوشش کرتا، جیسے سمجھتا ہو وہاں سے اسے کچھ ملے گا۔ وہ چیخ کر روتا، پھر خود ہی تھک کر میرے کندھے پر سر رکھ دیتا اور ہچکیاں لیتا رہتا۔ میں اسے سینے سے لگا کر چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ساس کھانس کھانس کر سو چکی تھی یا شاید بس آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ ان کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور دوائی لانے کے لیے ہمارے پاس ایک سکہ بھی نہیں بچا تھا۔ ابا بچپن میں ہی چھوڑ گئے تھے، ماں نے جیسے تیسے پال لیا، پھر اس گھر میں بیاہ کر آئی تو لگا زندگی بہتر ہو گئی ہے۔ ساس سخت تھیں پر محبت بھی کرتی تھیں۔ شوہر رات کی شفٹ میں کام کرتا تھا اور صبح ہوتے ہی میرے لیے چائے لاتا، کبھی کبھی بسکٹ بھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن کہا تھا، پیار سے سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس صبر رکھو۔ اور پھر ایک دن ایک فون آیا اور میری دنیا خاموش ہو گئی۔ کہا گیا وہ فیکٹری سے واپس آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا موقع پر ہی۔ میں نے سننا بند کر دیا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے، لیکن لگتا ہے جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ میرا بچہ، میری ساس اور میں، 3 لاشیں ایک زندہ جسم میں بند۔ فہد کی رونے کی آواز تیز ہو گئی، شاں شاں، بس بیٹا بس۔ میں نے اسے جھولا دیا پر وہ بازو جھٹک کر رونے لگا۔ میں جانتی تھی وہ بھوکا ہے، میں بھی بھوکی تھی، ساس بھی، لیکن ہم بڑے لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ بچہ اگر تھوڑی سی بے ہمت ہوتی تو کام پر چلی جاتی۔ بیگم صاحبہ بچہ کھانا دے دیتی تھی، چھوٹے کے لیے دودھ بھی نکل آتا تھا۔ ساس کی کھانسی میں لپٹی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف بچے کو سینے سے مزید بھینچ لیا۔ ان کی بات غلط نہیں تھی، پر میں کہاں جاتی، کس کو چھوڑ کر اور کس کے پاس فہد کو لے کر جاتی؟ وہ تو میرے ہونے سے بھی انجان تھا، صرف میری گرم گود سے مانوس تھا۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میری اپنی باتیں مجھے جھوٹی لگ رہی تھیں۔ اندھیرے نے کمرے کو نگل دیا تھا، بلب مہینوں پہلے جل گیا تھا، نئے کا سوچا بھی نہیں۔ دروازے کے پاس پانی کا گھڑا رکھا تھا، وہ بھی خالی پڑا تھا۔ پچھلے ہفتے جب پمپ بند ہو گیا تو پانی کے لیے پڑوس سے مانگا تھا، پر اب وہاں بھی حالات خراب تھے۔ بچے کی ہچکیوں میں اب سسکیاں شامل ہو چکی تھیں۔ میرا بیٹا، میرے لال، میں نے خود کو بھیگتے ہوئے محسوس کیا۔ آنسو، پسینہ یا کمزوری، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، شاید بھوک یا شاید خوف سے۔ دل جیسے سسکیاں بھر رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اب بس کر۔ دیوار پر ایک پرانا کیل نظر آیا، جہاں شوہر نے کبھی فہد کی پہلی چپل ٹانگی تھی۔ وہ چپل وہاں اب بھی لٹکی ہوئی تھی، ایک نشانی، ایک تانا، ایک خاموش چیخ۔ بچہ اب بھی رو رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے چارپائی سے اتر کر زمین پر بیٹھ کر جھولا دینا شروع کیا۔ بس کر بیٹا، نیند آ جائے گی، دودھ نہیں ہے پر ماں ہے تیرے پاس۔ میری ساس کے سینے سے پھر کھانسی کی آواز نکلی۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھے مگر لفظ نہیں نکلے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں، سانس بھاری۔ کمرے میں جیسے سب رک گیا، دیواروں پر صرف خاموشی تھی۔ چھت سے کچھ گرد جھڑ رہی تھی، باہر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، پھر وہ بھی بند ہو گئی۔ میرے لیے اب صرف 2 آوازیں رہ گئی تھیں، میرے بیٹے کی سسکی اور میرے دل کی دھڑکن، جو ہر لمحہ ایک سوال بن کر گونج رہی تھی۔ کیا کل ہوگا؟ کمرے میں دھند چھا رہی تھی یا شاید میری آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ کچھ لمحے بعد فہد تھک کر میرے بازو میں بے سدھ ہو گیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی، شاید نیند آ جائے یا شاید کچھ اور۔
لیکن اس وقت اس لمحے میری دنیا کا ہر رنگ ختم ہو چکا تھا، سوائے ایک کے، اندھیرے کے۔ اندھیرے میں سسکتی امید شاید ابھی مکمل مری نہیں تھی۔ میرے ذہن میں اس رات کی آوازیں ابھی تک گونجتی ہیں، وہ لمحے جیسے پتھر ہو گئے ہیں، حرکت نہیں کرتے، بس چبھتے ہیں۔ میرے شوہر فہد کے ابا عامر ایک سادہ خاموش آدمی تھے، بولتے کم تھے، سنتے زیادہ۔ ان کا دن فیکٹری میں گزرتا اور رات ہماری چرپائی کے درمیان ایک چھوٹا سا خواب بن کر پلتا، وہ خواب جو ہم نے اپنے بیٹے کے لیے دیکھا تھا، ایک چھوٹا سا اسکول بیگ، جوتے جو کبھی کاٹے نہ جائیں، اور وہ کھلونے جو میرے بچپن میں بھی نہیں آئے تھے۔ کل پگھلا ہوا اسٹیل میرے ہاتھ پر گر گیا تھا، یہ ان کے آخری دنوں کی بات ہے۔ تو زخم آیا؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹا سا ہے، بس جلن ہو رہی ہے، دوا لگا لی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تھا چپکے سے جب وہ سو رہے تھے۔ زخم چھوٹا نہیں تھا، پر وہ دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ شاید ان کا مان یہ تھا کہ مرد کی تکلیف دکھا دی جائے تو عورت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر ایک رات میرے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ بی بی، آپ کے شوہر، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہمیں اسپتال جانا ہوگا۔ میں کچھ لمحے تک کھڑی رہی، جیسے قدم زمین سے چپک گئے ہوں۔ ساس کے ساتھ دوپٹے میں فہد کو لپیٹ کر اسپتال پہنچی۔ وہاں کا منظر، زمین پر ایک اسٹریچر، اوپر سفید کپڑے سے ڈھکا جسم، صرف پاؤں نظر آ رہے تھے، وہی چپلیں جو میں نے پچھلے مہینے بازار سے لی تھیں، انہیں موقع پر ہی۔ کسی نے کہا اور میرے کان بند ہو گئے۔ واپسی پر کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا، بس خاموشی تھی اور وہ سفید کپڑا۔ میری ساس نے پہلی بار میرا ہاتھ اتنے زور سے پکڑا کہ میری کلائی چھل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف دروازہ کھولا اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد سب کچھ جیسے تیز رفتاری سے مٹی میں دفن ہوتا چلا گیا۔ فیکٹری سے صرف ایک ہفتے کی تنخواہ ملی، جس سے تدفین کا خرچ نکالا، پھر کچھ نہیں۔ رشتہ دار آئے، افسوس کیا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نہ کوئی فون آیا، نہ کوئی خیر خبر۔ سانس خاموش ہو گئی، جیسے ان کی ہڈیوں میں بھی دکھ بھر گیا ہو۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتی اور ایک ٹک باہر دیکھتی، جیسے ابا واپس آئیں گے۔ فہد کو وہی کمبل اڑھایا جو ان کے ابا کا تھا، اس میں ان کی خوشبو تھی۔ ایک دن اس کمبل کو سینے سے لگا کر فہد سوتے سوتے رو دیا، جیسے پہچان گیا ہو کہ یہ کسی اپنے کا ہے۔ تب سے دن صرف گزرنے لگے۔ صبح ہوتی تو ساس کو بخار ہوتا، دوپہر آتی تو فہد رو پڑتا، رات کو چولہا نہیں جلتا۔ کئی دنوں تک ایسا ہوا کہ میں نے صرف پانی پی کر فہد کو سلایا۔ کسی دن پڑوس سے تھوڑا سا آٹا ملا، کسی دن کسی کی بچی ہوئی روٹی۔ کچھ دن بعد ساس کی طبیعت مزید بگڑ گئی، ان کے جسم پر نیلاہٹ چھا گئی تھی، جس سے خون رک گیا ہو۔ لیکن دوا کہاں سے لاتی؟ دواؤں کے نام میرے لیے غیر زبان کے الفاظ ہو گئے تھے، جو صرف نسخوں میں اچھے لگتے تھے۔ وہ رات دوسرے دنوں جیسی نہیں تھی۔ بارش تو تھم چکی تھی، لیکن ہوا میں نمی اب بھی بھری ہوئی تھی۔ چھت کے کونے سے پانی کا ایک ایک قطرہ نیچے ٹپک رہا تھا، اور کمرے کی دیواریں سانس لیتی محسوس ہو رہی تھیں۔ فہد میرے ساتھ لپٹا ہوا تھا، بخار میں تپتا ہوا۔ میں نے اسے پیار سے لوریاں دی، لیکن وہ ایک دم سے رو اٹھا، شاید پھر بھوک لگ گئی تھی۔ ساس کی چرپائی کی طرف دیکھا، وہ بے حس و حرکت لیٹی تھی، ایسا لگتا جیسے ان کے اندر کی آوازیں بھی تھک گئی ہوں۔ میں اٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، فہد کو جھولے کی طرح گود میں لے کر۔ باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں، اور کسی دور دراز گھر سے ریڈیو پر کوئی پرانا گیت بج رہا تھا۔ آواز مدھم تھی، جیسے کسی خواب کی گونج۔ فہد مسلسل رونے لگا۔ میں نے پرانے کچن کی طرف دیکھا، جہاں کبھی دودھ ابلا کرتا تھا، وہ اب سنسان پڑا تھا۔ چولہا زنگ آلود ہو چکا تھا، اور دیوار پر کالک جیسے کسی ماتم کا نشان چھوڑ گئی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے پرانی ٹوکری اٹھائی، جس میں کبھی کچھ برتن اور ایک ٹوٹا ہوا فیڈر پڑا تھا۔ وہی فیڈر میرے ہاتھ میں آیا، خالی تھا، جیسے ہمیشہ سے خالی ہو۔ اسی لمحے میرے کمرے کی چھت سے کچھ آواز آئی، جیسے کوئی ہلکی سی چاپ۔ میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ میں نے سر اوپر کیا، کمرے کی چھت کے کنارے ایک سایہ سا ہلا۔ ہوا کا جھونکا اندر آیا، دروازے کی جھری ہلکی سی کھلی اور وہ سایہ غائب ہو گیا۔ کون ہے؟ میری آواز حلق میں دب گئی۔ فہد کے رونے میں میری گھبراہٹ دب گئی۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر اندھیرا تھا۔ پچھواڑے کی طرف نظریں ڈالیں، کچھ نہ دکھا۔ میں جلدی سے واپس کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فہد اب بری طرح تڑپ رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ میں گھبرا کر اسے اپنی گود میں سیدھا کیا۔ بس بیٹا، کچھ نہیں ہوا، ماما ہے تیرے پاس۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ تیز بخار تھا،
अचानक मेरी नज़रें फीडर पर पड़ी जो अब कुछ अजीब लग रहा था। मैंने उसे उठाया, वो गर्म था, अंदर दूध भरा हुआ था। ये कब आया? मैंने उसे हिलाया। दूध की खुशबू तेज़ थी, जैसे ताज़ा उबला हुआ हो, लेकिन मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं था। मेरी उंगलियां लर्ज़ गईं, दिल में सवालों की बौछार होने लगी। सास सो रही थी, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा और दरवाज़ा भी बंद था। फ़हद की हिचकियाँ रुकने लगी, जैसे उसे दूध की खुशबू ने सुकून दे दिया हो। मैंने बगैर कुछ सोचे फीडर उसके मुंह से लगा दिया। वो लालच से पीने लगा, जैसे कई दिनों से भूखा हो। मैंने सर उठाकर फिर छत की तरफ देखा। अब वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा, लेकिन अंदर एक अजीब बेचैनी सी चिपक गई थी। फ़हद आधा दूध पीकर सो गया। उसका सांस हमवार हो चुका था, पेशानी ठंडी लगने लगी थी। मैंने उसे एहतियात से चारपाई पर लिटाया और ख़ुद पास बैठ गई। दरवाजे के पास एक ठंडी हवा का झोंका फिर से दाखिल हुआ। मैंने फीडर दोबारा देखा, वो अब खाली था। दूध का एक कतरा निचली सतह पर बचा था, जैसे कोई निशान छोड़ गया हो। फिर एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे छत पर कोई चल रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठी, हाथ में फीडर था, दिल में खौफ और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, ये दूध आया कहाँ से? मैं दरवाजे तक गई, दर से बाहर झांका, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। छत की सीढ़ियाँ हमारी कच्ची गली के कोने पर थीं। ऊपर जाने का हौसला नहीं हुआ, लेकिन आंखें छत पर टिकी रहीं। चंद लम्हे गुजरे, हवा का रुख बदला और मैंने छत पर एक लम्हाती हरकत महसूस की, जैसे कोई दीवार से पड़े हटा हो। लेकिन अगले ही लम्हे सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं वापस कमरे में आई और खामोशी से फीडर को पुरानी टोकरी में रख दिया। सास ने नींद में कुछ बड़बड़ाया। मैंने करीब जाकर सुना, देख वो फिर आया है, वही साया। मैं चौंकी। वो सो रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानती हूँ और मैं अनजान हूँ। मैंने पहली बार सोचा, क्या ये सब वो पहले भी देख चुकी हैं? क्या वो जानती है उस छत पर क्या है? उस रात मैं सो न सकी। बार बार आंखें छत की तरफ जाती, बार बार दरवाजे की कुंडी चेक करती, लेकिन दोबारा सारी रात कुछ नहीं हुआ। सुबह की पहली रोशनी भी पूरी तरह फैली नहीं थी, लेकिन मेरा जहन रात के मंदिर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फीडर का भरा होना, दूध की महक, वो साया जो छत पर दिखाई दिया था, कुछ तो था जो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मौजूद ज़रूर था। दोपहर तक फ़हद जाग चुका था, हंस भी रहा था। मुझे लगा शायद वो ठीक हो रहा है। मैंने उसे नीचे फर्श पर बिठाया। वो इधर उधर रेंगने लगा। सास की चारपाई के पास गया, उनकी चादर खींची और कुछ बोलने की कोशिश की। सास की आंखों में हल्की सी चमक आई। मेरा पोता इतना सा होकर भी इतना समझदार है। मैंने मुस्कुरा कर देखा। दिल थोड़ी देर के लिए पुरसुकून हुआ। सारा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन शाम होते ही वही बेचैनी फिर लौट आई। सूरज के ग़रूब होने के साथ जैसे कुछ और भी अंधेरे में उतरने लगा था। फ़हद थका हुआ था, जल्दी सो गया। सास की सांसें तेज़ हो रही थीं, बुखार शायद वापस आ रहा था। मैंने उनका माथा छुआ तो वो हड़बड़ा कर जाग गए। कोई था यहाँ? नहीं अम्मा, मैं ही हूँ। नहीं, किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, शायद ख्वाब था। उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने चारपाई के पास बैठकर फ़हद के चेहरे पर हाथ फेरा। वो सुकून से सो रहा था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट और दरवाजे की झरियों में से आती मध्यम सांसों जैसी आवाज़ें। मैंने पीछे से हल्की सी चाप सुनी, झट से पलटी, कुछ न था। दरवाज़ा बदस्तूर बंद था। कमरे की दीवारों पर पिछले बरस की बारिशों के निशान थे, जो अब खुश्क होकर नक्श बन चुके थे। फिर अचानक एक सरगोशी सुनाई दी, तुम फिक्र न करो, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। मैं जैसे पत्थर हो गई। आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब से आई थी, जैसे किसी ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा हो। मैंने फ़ौरन इधर उधर देखा। कमरा वैसा ही था, सास बेखबर, फ़हद सोया हुआ, बाहर का दरवाज़ा बंद। मैं अपनी जगह से ना हिली, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सरगोशी में ना कोई दरिश्ती थी ना नरमी, बस एक अजीब सी गूंज। कौन है? मैंने खुद से कहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर झांका। आसमान पर आधा चांद झलक रहा था। गली सुनसान थी, छत पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ फ़ज़ा में वही सरसराती खामोशी, जैसे कुछ बोलना चाह रही हो। कमरे में वापस आई तो फ़हद ने करवट बदली। सास की आंख खुली, मुझे बैठा देखकर बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही, दिल पर बोझ है ना? पता नहीं अम्मा,
कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी बोझ वाले दिल को कोई नजर नहीं आता, पर कोई सुन रहा होता है। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। क्या मतलब? बस यूं ही एक ख्याल आया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने एक बार फिर छत की तरफ देखा। दिल में सवाल जागे, लेकिन लब खामोश रहे। क्या वो सरगोशी मेरा वहम थी या वाकई कोई था जो मेरी बात सुन रहा था? रात का एक पहर गुजर चुका था। मैंने फाहद को थोड़ा सा दूध पिलाया जो पिछली रात के बचे हुए फीडर में रह गया था। वो नींद में हल्की सी आवाज़ निकाल कर फिर सो गया। जब मैंने सर चारपाई की पट्टी से टिकाया तो वही आवाज़ फिर से आई, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल वाज़िया। डरो नहीं, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। मैं एकदम सीधी हो गई। इस बार आवाज़ दिल के अंदर से निकली हुई महसूस हुई, जैसे कोई मेरे अंदर आकर बात कर रहा हो। कमरा फिर वैसा ही खामोश हो गया, लेकिन अब मेरे दिल में कुछ हिलने लगा था, डर और इत्मीनान एक साथ। मैंने खुद को संभाला, फाहद के पास जाकर बैठ गई। उसकी नींद गहरी थी, चेहरे पर सुकून, लेकिन मेरे अंदर कुछ जाग चुका था। उस रात के बाद जैसे कुछ बदल गया था। कमरे की दीवारें अब सिर्फ ईंटें नहीं लगती, उनमें एक अजीब सी जान आ गई थी। फाहद की नींद गहरी होने लगी थी और सांस की खांसी भी कम हो गई थी, जैसे कोई साया हमें थामे हुए हो। हर रात जब फाहद रोता तो मैं खुद ब खुद जाग जाती। अक्सर ऐसा होता कि मेरे उठने से पहले ही फीडर दूध से भर चुका होता, गर्म महकता हुआ, जैसे अभी अभी किसी ने चूल्हे पर उबाला हो। पहले पहल तो मैं उसे इत्तेफाक समझती रही, लेकिन 3 रातें यूं ही गुजर गईं। कोई दरवाज़ा न बजा, कोई कदमों की चाप नहीं, लेकिन हर बार फीडर में इतना दूध होता कि फाहद सैर होकर सो जाता। चौथी रात फाहद का बुखार लौट आया। मैंने चादर में उसे लपेटा और अपने सीने से लगा लिया। सास की हालत भी नाजुक हो गई थी, उनकी सांसों में खड़खड़ाहट थी। मैं बेबसी से कमरे में चक्कर काटने लगी, न दवाई न मदद। फिर अचानक कमरे के कोने में रखा पुराना थैला हल्का सा हिला। मैंने चौंक कर देखा, आहिस्ता से पास गई। थैला खोला तो अंदर एक छोटी शीशी थी। सफ़ेद लेबल पर लिखा था, बुखार कम करने वाली दवा, बच्चों के लिए। मैं पीछे हटी। ये कहाँ से आया? दरवाज़ा बदस्तूर बंद था, खिड़की भी ठीक से बंद। ना कोई आया ना गया, लेकिन दवा यहाँ थी। ये किसने रखा? मेरी सांस अटक गई। कमरे में फिर वही खामोश सरगोशी की फ़ज़ा छा गई। मैंने कुछ नहीं कहा, शीशी से दवा निकाली और फाहद को दे दी। वो चंद मिनटों में पुरसुकून हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो कमरे की दहलीज पर एक पुराना रुमाल रखा हुआ था। अंदर खाने की 2 छोटी पोटलियां बंद थीं। एक में आधी रोटी और थोड़ा सा गुड़, दूसरे में नरम उबला हुआ चावल। सास ने जैसे ही रोटी देखी, आंखों में नमी आ गई। किसने दिया? नहीं पता माँ, दरवाज़ा तो बंद था, रब के करम से है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर एक और आवाज़ तेज़ होने लगी। ये सब कुछ किसी के हाथ से हो रहा है, किसी अनदेखे हाथ से। फिर अगले दिन के वक्त एक और अजीब वाक़या हुआ। मैंने कपड़े धोने के बाद पिछली दीवार पर डाले और सास की पुरानी चप्पल टूट गई। सोचा किसी से मदद मांगकर सिलवा लूँ, पर दिन भर कोई बाहर न निकला। शाम को जब कपड़े उतारने गई तो दीवार के कोने में एक पुरानी चप्पल रखी थी, जो बिल्कुल अम्मा के साइज़ की लगती थी। किसी ने वहाँ रखी थी, लेकिन कौन? क्या हम ख्वाब देख रहे हैं? मैंने सास से कहा। नहीं, कुछ दुआएं यूं पूरी होती हैं कि देने वाला सामने नहीं आता। सास ने आहिस्ता से जवाब दिया, लेकिन मेरा दिल अब बस उन बातों से मुतमईन नहीं होता था। मुझे जानना था वो कौन है जो हर रात हमारे लिए खाना, दवा और दूध रखता है। कौन है जो हमें देखता है, सुनता है, लेकिन सामने नहीं आता। उस रात मैंने फाहद को सुलाकर खुद चारपाई पर नहीं लेटी, ज़मीन पर बैठकर दीवार के साए में आंखें गाड़ दी। मैंने वही खाली फीडर पास रख दिया जैसे पिछली रातें दोहरा रही हूँ। सास की खांसी दूर हो चुकी थी और उनके माथे पर आज कई दिनों बाद सुकून दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे अंदर सवालों की आग रोशन थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने बाहर की लालटेन को आधा खोला हुआ रखा था ताकि जो भी आए देख सकूं। वक्त गुजरता गया। फाहद हल्की सी करवट लेता तो मेरा दिल काम जाता, पर इस बार वो पुरसुकून था। अचानक दीवार के ऊपरी हिस्से पर कुछ हरकत सी महसूस हुई, जैसे हवा ने कोई हल्का पर्दा सरकाया हो। मैंने आंखें तेज की। कमरे की दीवार पर खिड़की के करीब एक धुंध सी जमा होने लगी। पहले पहल लगा कि शायद नज़र का धोखा है, लेकिन वो धुंध अब चेहरा बनने लगी। एक खामोश धुंधला चेहरा, वाज़ेह नहीं पर इतना साफ कि आंखें दिखाई देने लगी, और वो आंखें जैसे अंदर कहीं बहुत पुराना दुख छुपा बैठा हो। मैं साकत हो गई। हाथ खुद ब खुद फाहद की तरफ बढ़ा। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते?
میری آواز فضا میں تحلیل ہو گئی۔ چند لمحے کچھ نہ ہوا، پھر دیوار پر سایہ تھوڑا اور واضح ہوا۔ اب وہ چہرہ صرف دھند نہیں تھا، ایک باقاعدہ شبیہ تھی، ایک جوان چہرہ، آنکھیں بڑی، سیاہ اور گہری، ہونٹ ساکت پر جیسے کچھ کہنے کو بےتاب ہوں۔ کون ہو؟ یہ سب تم کر رہے ہو؟ کیوں؟ سایہ ایک لمحے کو ٹھہرا، پھر اچانک کمرے کی دیوار سے الگ ہو کر سامنے آ گیا، جیسے دھند اب جسم بن گئی ہو۔ میری سانس رک گئی۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، قد لمبا، چہرہ شفاف، پر آنکھوں میں کوئی عام انسانوں جیسے روشنی نہیں تھی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، پر چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ خوف، بس یہ خاموشی جو گونج بن کر کمرے میں پھیل گئی۔ میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر کون ہو تم؟ انسان تو نہیں لگتی۔ نہیں، میں انسان نہیں، میں جن زادہ ہوں۔ میرا جسم سن ہو گیا، دل جیسے رک گیا ہو۔ جن زادہ؟ میری زبان کانپ گئی۔ میں تمہارے گھر کی پچھلی جانب لگے پرانے درخت پر رہتا تھا۔ جب تم اوپر کپڑے ڈالنے آتی تھی، میں تمہیں دیکھتا تھا، تب جانا کہ تم یہاں کی نہیں لگتی۔ کچھ تھا تم میں، خاموش، سادہ اور سچا۔ تم ہمیں کیوں دیکھتے تھے؟ میں دیکھتا تھا کیونکہ میں بھول نہیں سکتا کہ تمہاری ساس نے برسوں پہلے میری ماں کی مدد کی تھی۔ وہ انسان تھی اور میں آدھا انسان، آدھا کچھ اور۔ مجھے بچایا گیا تھا اسی چھت تلے، تب سے میں احسان مند ہوں۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ سایہ مکمل شکل اختیار کر چکا تھا، لیکن اس کا وجود روشنی کے ساتھ ٹکرا کر ایک ہلکا سا چمکدار ہالہ بنا رہا تھا، جو عام انسانوں میں نہیں ہوتا۔ جو بھی ہو، تم نے میرے بچے کو بچایا، میری ساس کو سہارا دیا، لیکن تم سامنے کیوں نہیں آتے تھے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے ڈرو۔ میں صرف مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی صلے کی امید نہیں رکھتا، لیکن تمہیں تکلیف میں دیکھ کر خاموش نہیں رہا جا سکا۔ اور اب تم نے پکارا، اس لیے آ گیا۔ میں خاموش رہی۔ چند لمحوں کے لیے ہم دونوں ایک ہی جگہ ساکت کھڑے رہے۔ کمرے میں ہوا تھم گئی تھی، دیواروں کی نمی سوکھنے لگی تھی۔ کیا تم ہمیشہ رہو گی؟ نہیں، میرا دنیا میں رہنا موقوف ہے۔ مجھے واپسی کا اشارہ کبھی بھی مل سکتا ہے، لیکن جب تک ممکن ہو میں یہ اندھیرے تم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ انسان نہیں تھا، پر جو درد وہاں تھا وہ ہر انسان سے گہرا تھا۔ اگر تم جا بھی گئے تو یہ جو تم نے دیا، یہ بھولنا مشکل ہے۔ بس دعا کرو کہ تمہیں اب اور کسی سائے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا، دیوار میں نہیں، کمرے کی چھت کی سمت، جیسے ہوا کا حصہ بن گیا ہو۔ دروازے پر پہنچا تو ایک بار پلٹ کر بولا، سایہ اب حقیقت بن چکا ہے، پر تم جو بھی فیصلہ کرو دل سے کرنا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ چلا گیا۔ کمرہ پھر ویسا ہی خاموش ہو گیا۔ میں نے فاحد کو سینے سے لگا کر کہا، اب کچھ جان گئی ہوں، لیکن ابھی سب نہیں، کیونکہ کچھ کہانیاں بس شروع ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ میں نے اگلی شام دروازہ بند نہیں کیا، بس کنڈی آدھی لگائی اور فاحد کو جلدی سلا دیا۔ اماں کی سانسیں پھر سے بھاری لگ رہی تھیں، بخار نے انہیں دوبارہ پکڑ لیا تھا۔ دوا ختم ہو چکی تھی اور پیسہ اب بھی نہیں تھا، لیکن اندر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اب اکیلی نہیں ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی، صرف فاحد کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تبھی لالٹین کی لو ایک دم ہلے، جیسے ہوا کا کوئی جھونکا اندر آیا ہو، لیکن کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے نظریں دروازے کی سمت دوڑائیں اور وہ وہاں موجود تھا، کل رات کی طرح سائے جیسا نہیں، مکمل انسانی شکل میں۔ دھواں اب کی بار نہیں تھا، وہ روشنی میں بھی واضح تھا۔ کل چہرہ، لباس، ہر چیز صاف، صرف آنکھیں وہیں تھیں، گہری، خاموش، لیکن اب ان میں ایک ٹھہری ہوئی تپش تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرے بارے میں اور جاننا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے ہونٹ بھینچے، سوال بہت تھے لیکن زبان اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ بیٹھو، میں نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا۔ تو بتاؤ، تم کون ہو اصل میں؟ میں جن زادہ ہوں، آدھا انسان آدھا کچھ اور۔ میری ماں انسان تھی، میرے باپ کی دنیا الگ تھی۔ ماں کو نکال دیا گیا اور میں اسی درخت کے پاس بڑا ہوا جو تمہارے گھر کی پچھلی طرف ہے۔ اس درخت پر رہتے تھے تم؟ ہاں، سالوں تک وہی میرا مسکن رہا۔ پھر تم آئی چھت پر کپڑے ڈالنے، جب بھی آتی میں دیکھتا تھا
तुम्हें देखकर पहली बार वो जगह घर जैसे लगी, लेकिन तुमने कभी बात क्यों ना की? क्योंकि तुम शादीशुदा थी, तुम्हारे साथ एक मर्द था, तुम्हारी एक दुनिया थी, मैं एक साया हूँ। मैं कैसे तुम्हारी रोशनी बन सकता था? वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर आगे बढ़ा। जब तुम्हारे शौहर का हादसा हुआ, मैं दूर था, किसी और मकाम पर भेजा गया था, लेकिन कुछ दिन पहले वापसी हुई और जब यहाँ आया तो तुम्हें इस हाल में पाया। तब तुमने मदद शुरू की। हाँ, पहले दूध, फिर दवा, फिर खाना। तुम्हें देखकर एहसास हुआ कि तुम सिर्फ किसी की बीवी नहीं थी, तुम एक माँ हो, एक बेटी जो खुद पर सब कुछ कुर्बान कर रही है। मैंने गहरा सांस लिया। कमरे में नमी और कुछ कहने की ख्वाहिश साथ साथ जमा हो रही थी। लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत थी? तुम तो आज़ाद हो, हमारी दुनिया से अलग। नहीं, मेरी माँ की वजह से मेरा दिल इंसानों जैसा है। उस दिन जब फाहद की चीखें सुनी, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं खुद को रोक नहीं सका। और अम्मा की दवा, वो भी तुमने ला कर रखी। हाँ, तुम्हारे सहन के पुराने दरवाजे से आता था, जो तुम कभी बंद नहीं करती थी। मुझे पता था तुम्हें ज़रूरत है और तुम मांगने नहीं जाओगी। मैं खामोशी से दरवाजे की तरफ देखती रही। उसकी बातों में हकीकत थी, लेकिन ये सब अभी भी नाकाबिले यकीन लग रहा था। तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया एक जैसी नहीं। तुम यहाँ की नहीं हो, लेकिन दिल एक सा धड़कता है, फहम एक जैसा सोचता है, और जज्बे वो मखलूक नहीं देखते। तो फिर क्या चाहते हो तुम? वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर नज़रें झुकाकर बोला, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ कि तुम मजबूर हो, और शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरी सांस रुक सी गई। कमरे में जैसे कुछ भी न रहा हो, सिर्फ वो एक जुमला। उसका लहजा सादा था, मगर उसमें ऐसा वजन था कि ज़मीन भी झुक जाए। मोहब्बत? तुम मुझसे? हाँ, शायद गलत हो, शायद मुमकिन है, लेकिन सच यही है। तुम्हें देखकर जो महसूस होता है वो मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारा सुकून मेरी ख्वाहिश है। मैं पलटकर फाहद की तरफ देखने लगी। वो अभी पुरसुकून नींद में था। उसकी नींद में पहली बार इतना सुकून आया था जब से ये साया हमारी ज़िंदगी में आया था। तुम्हें पता है ना, ये सब आसान नहीं। लोग, दुनिया, खौफ, सवाल, सब आड़े आएंगे। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम जान लो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वो खामोशी से पीछे हटने लगा। रुको। वो रुका। तुम वापस आओगे जब तुम चाहोगी। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी नहीं आऊँगा। वो मुड़ गया और दरवाजे की सिमत बढ़ा। जाते जाते एक बार पलट कर देखा और बस एक हल्की सी सरगोशी हवा में रह गई। मैं हूँ और रहूँगा जब तक तुम चाहोगी। कमरे में फिर खामोशी थी, लेकिन इस बार वो तन्हाई वाली खामोशी नहीं थी, जैसे किसी ने हाथ थामा हो, अनदेखे हाथ से, मगर दिल के बहुत करीब। उसके जाने के बाद कमरे की हवा बदली हुई महसूस हुई। न वो साया बाकी था, न वो रोशनी जिसने चंद लम्हों को किसी और जहान का हिस्सा बना दिया था, लेकिन उसकी बातें जैसे दीवारों पर लिख दी गई थी। मैंने फाहद के चेहरे पर हाथ फेरा और ख़ुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है, सब ख्वाब की तरह गुजर जाएगा, मगर दिल में कोई हल्की सी चिंगारी बाकी रह गई थी जो बुझ नहीं रही थी। अगले दिन फाहद ने आंख खोली तो हंस दिया। अम्मा ने उसे अपनी गोद में लिया और बोली, ये बच्चा पहले जैसा नहीं रोता, अजीब सा सुकून है इसमें। हाँ अम्मा, शायद दवा असर कर गई है। मैंने उनसे नज़र चुराई। उनसे ये सब कहना भी मुमकिन नहीं था। दिन मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन शाम होते ही मैंने महसूस किया कि लालटेन की रोशनी कुछ देर के लिए हल्की हुई और फिर दोबारा तेज़। दरवाज़ा बंद था, पर जैसे किसी ने आहिस्ता से उसे छुआ हो। मैंने कुंडी खोली और वो वहाँ खड़ा था, जैसे वो वादा कर चुका हो कि जब बुलाऊंगी आ जाएगा। मैंने नहीं बुलाया। मैंने नज़रें नीचे रखते हुए कहा, जानता हूँ, लेकिन तुमने सोचा ज़रूर था। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। हम दोनों एक लम्हे के लिए खामोश रहे। मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। वो अंदर आ गया, लेकिन पहले की तरह दरवाजे के पास ही रुका रहा। कल रात जो कहा तुमने, वो बात तुम जानते हो वो मुमकिन नहीं। क्यों नहीं? उसका लहजा नरम था, लेकिन सवाल में यकीन छुपा था। क्योंकि तुम और मैं एक जैसे नहीं। तुम जिनज़ादा हो, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। ये सिर्फ जज्बात नहीं, हकीकत है। तुम्हें लगता है मोहब्बत मखलूक देखती है, शक्ल, नस्ल, जिन्स, हैसियत। नहीं, वो बस हो जाती है, जैसे तुमने अपने शौहर से की थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है। वो सब बिना किसी शर्त के। पर वहाँ कोई फ़र्क नहीं था। ये फ़र्क तुमने बनाया है, दिल ने नहीं।
मैंने रुख मोड़ लिया, खिड़की से बाहर देखा। गली में अंधेरा गहरा हो रहा था और कुछ बच्चे खेलते खेलते शोर मचा रहे थे। उनकी आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी, जैसे वक्त भी सुस्त पड़ गया हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हें कबूल कर लूं? नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सच को पहचानो, उस सच को जिसने तुम्हें तन्हाई से निकाला, तुम्हारे बच्चे को जिंदगी दी, तुम्हारे घर को उम्मीद दी। और अगर ये सब खत्म हो जाए, अगर तुम चले जाओ, तो तुम पहले की तरह मजबूत रहोगी, लेकिन मैं जब तक हूँ तुम्हें तन्हा नहीं होने दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो खामोशी से मेरी आंखों में झांक रहा था, ना कोई धमक, ना कोई इल्तिजा, बस एक सच जो लफ्जों से ज्यादा आंखों में था। जानते हो, जब पहली बार तुम्हें देखा तो डर गई थी, फिर तुम्हारी मदद ने मुझे शुक्रगुजार बना दिया, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। पर मैं खुद से पूछती हूँ, क्या मैं किसी साय से मोहब्बत कर सकती हूँ? साया नहीं, मैं भी एक वजूद हूँ, एक मुकम्मल दिल रखता हूँ। तुम्हें महसूस किया, तुम्हारा दुख देखा, तुम्हारा हौसला, और शायद ये वही सब कुछ था जिससे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैंने दीवार के कोने पर नज़र डाली, जहाँ उस रात वो पहली बार वाज़िया हुआ था। उस दीवार पर अब भी कुछ धुंध सा जम सा गया था, जैसे उसके कदमों का निशान हो। तो फिर क्या चाहते हो? कुछ नहीं, सिर्फ ये कि तुम खुद से सच छुपाना बंद करो। कमरे में खामोशी छा गई। फहद नींद ने कुछ बड़बड़ाया। मैंने लपक कर उसे थपथपाया और वो फिर गहरी नींद में चला गया। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं चाहती, ना वादा ना रिश्ता, बस इतना कि तुम जो हो वो बनकर रहो। मेरे दिल में और उलझने ना डालो। मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा फैसला चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी से। मैंने नज़रें झुका ली। दिल जैसे कोई नरमाहट सी लेने लगा था। उसकी बातें कमरे में रह गईं, पर मेरे अंदर कुछ हिलने लगा था, कुछ ऐसा जो अब तक सोया हुआ था। वो खामोशी से पलटा, दरवाजे की दहलीज पर रुका और बगैर कुछ कहे चला गया। उसके कदमों की आवाज़ भी नहीं आई, जैसे वो हवा का हिस्सा था। मैं दरवाजे तक आई, बाहर देखती रही। वो जा चुका था, लेकिन मेरी खामोशी में उसकी बातें गूंज रही थीं। मोहब्बत मखलूक नहीं देखती, बस हो जाती है। और मैं कुछ ना कह सकी, बस दिल में एक हलचल बाकी रह गई। उस रात फहद को सुलाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अम्मा भी गहरी नींद में थी। मैं कमरे के कोने में खामोश बैठी रही, जैसे किसी अनजान दस्तक का इंतज़ार हो। हर बार वो आता तो हवा बदलती, दरो दीवार थम जाते, लेकिन आज सब कुछ वैसा ही था, पुरसुकून, मध्यम और बेआवाज़। फिर जैसे ज़मीन ने सांस ली, दरवाजे की पट ने हल्की सी जंबश की और वो दाखिल हुआ। इस बार चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, जैसे कोई पुराना राज आज ज़ुबान पर आ गया हो। मुझे पता है तुम सवालों से थक गई हो, लेकिन आज कुछ कहने आया हूँ जो बरसों से दिल में दबाया हुआ था। अब और क्या है जानने को? वो जो तुम जानती हो, बस वही नहीं काफ़ी। कुछ चीज़ें तुम्हारे माजी से जुड़ी हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं। मैं खामोशी से सुनती रही। उसकी आंखें मामूल से ज़्यादा नरम लग रही थीं, जैसे किसी छुपे हुए दुख की परछाइयाँ उभरने लगी हों। बरसों पहले मैं बहुत छोटा था, शायद 2 साल का। मेरी माँ एक इंसान थी, लेकिन मेरी पैदाइश ने उसकी दुनिया बदल दी। उसे उसकी बस्ती से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं जिनज़ादा था। उसने मुझे छुपाया, कभी किसी दरख्त की जड़ में, कभी वीरान खंडर में। खाने को कुछ न था, मैं सिर्फ रोता रहता। वो भूखी प्यासी मुझे चुप करवाती। फिर एक दिन वो थक गई। मेरे रोने से उसकी हिम्मत जवाब दे गई। मैं मिट्टी पर लेटा था और वो रो रही थी। उससे लम्हे एक औरत वहाँ से गुजरी, एक मामूली कपड़ों में, कमज़ोर सी औरत, लेकिन उसके चेहरे पर रोशनी थी। उसने मेरी माँ को देखा और बिना कुछ पूछे अपने दुपट्टे से मेरी माँ को पानी पिलाया। कुछ पुराने बिस्किट निकाले और मेरे हाथ में दिए। वो औरत और कोई नहीं, तुम्हारी सास थी। मेरी सांस रुक गई। मेरी अम्मा? हाँ, उन दिनों तुम्हारी अम्मा एक घरेलू मुलाजमा थी। किसी बड़े बंगले से काम से वापस आ रही थी। मेरे जैसे मखलूक से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने ना ज़ात देखी ना नस्ल, बस भूख देखी और उसे मिटा दिया। माँ ने कहा था, ये बच्चा अल्लाह का अमानत है, इसे मरने न देना। वो दिन मेरी माँ के लिए ज़िंदगी का लम्हा बन गया। तो तुम ये सब एहसान चुकाने के लिए कर रहे हो? नहीं, एहसान चुकाया नहीं जाता। मैं तो बस वही दे रहा हूँ जो वक्त ने मुझे दिया। माँ अब नहीं है, लेकिन उसकी दुआएं मुझे तुम तक ले आई। फिर तुमने ये सब क्यों नहीं बताया पहले? क्योंकि मैं जानता था तुम्हें मेरे असल से ही डर है। अगर ये जान लेती कि मैं तुम्हारे माजी से भी जुड़ा हूँ, शायद ये बोझ और बढ़ जाता।
लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। वो चंद कदम आगे बढ़ा और अपनी दाएं हाथ से एक छोटी सी थैली निकाली। गहरा नीला कपड़ा जिस पर सुनहरी धागे से कुछ नक्श बना था। ये क्या है? मेरी माँ के बाद जो कुछ मेरे पास बचा वो यही है, एक खजाने की सूरत में, जिसमें इंसानों के लिए वही चीज़ है जो उनके जख्मों का इलाज कर सके। रुपया। इनसे अपनी सास का इलाज करवाओ। उन्हें वक्त की ज़रूरत है और वक्त हम जैसे नहीं दे सकते, तुम दे सकती हो। मैंने झिझकते हुए थैली पकड़ी। वो वज़नी थी और अंदर से खनकने की आवाज़ आई। मैंने खोला। नोटों से भरी हुई थी, साफ, नए और शायद हमारे लिए नाकाबिले यकीन। इतने पैसे तुमने कहाँ से? ये मेरी माँ की अमानत थी। तुम्हारी सास ने ज़िंदगी दी थी, अब मैं इनकी ज़िंदगी बचाने आया हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब है, जैसे सब कुछ एक ही कहानी के दो किनारे हों, लेकिन कभी आपस में ना मिले हों। कभी कभी कहानियाँ एक सादा सी लकीरें नहीं होती, वो चक्कर खाती हैं, लौटती हैं, जुड़ती हैं। तुम्हारा माजी मेरे हाल से जुड़ा था और अब तुम्हारा हाल मेरे दिल से। मैंने अम्मा की तरफ देखा। वो नींद में थी, चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, लेकिन अब मुझे उम्मीद थी कि कल उनके लिए कुछ मुमकिन हो सकेगा। तुम चले जाओगे? नहीं, अभी नहीं। जब तुम्हारी सांस ठीक हो जाए, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत न रहे, तब जाऊंगा। फिर तुम क्या बनोगे मेरे लिए? जो तुम चाहो, एक साया, एक मददगार या कुछ और। मैंने थैली को मजबूती से थाम लिया। कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही। मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन दिल में अभी भी बहुत कुछ है जो समझ नहीं आया, और जब समझ आ जाए तो बुला लेना। मैं यही हूँ, कहीं करीब। वो पलटकर जाने लगा, लेकिन फिर रुका। एक बात और, मेरी माँ का नाम भी फातिमा था, जैसे तुम्हारी सास। शायद इत्तेफाक हो, शायद किस्मत की गवाही। उसके कदम दरवाजे से बाहर निकले और मैं देर तक वहीं खड़ी रही। कुछ सच इंसान की ज़िंदगी बदलने नहीं समझने आते हैं, और ये सच मेरे अंदर कुछ बदल गया था। उसके जाने के बाद मेरे हाथ में वो थैली थी और दिल में एक फ़ैसला जो रात भर बदलता रहा। अम्मा की सांसें बेरब्त होती जा रही थीं। दवा की हर खुराक आर्जी सुकून देती, मगर मुस्तकिल बेहतरी कहीं दिखाई नहीं देती थी। सुबह होते ही मैं फाहद को कपड़े पहनाती, अम्मा को चादर ओढ़ाती और थैली सीने से लगाकर करीबी क्लिनिक ले गई। पहली बात, किसी दवा वाले को पैसे देते हुए मेरा हाथ नहीं कांपा। डॉक्टर ने अम्मा की हालत देखी, रिपोर्ट्स लिखी, कुछ दवाएं तजवीज़ की और ख़ास ताकीद की। ये कमज़ोरी बरसों की है, वक्त लगेगा। दवा के साथ परहेज़ और खुराक भी ज़रूरी है। मैंने सब सुन लिया और कुछ समझे बगैर हाँ में सर हिलाती गई। 2 दिन के अंदर दवा, एक विटामिन का ड्रिप और कुछ हल्की खुराक शुरू कर दी गई। अम्मा की आंखों में अब थकन के साथ उम्मीद भी आने लगी थी। तो ये सब तुमने कैसे किया? एक दोस्त है जिसने मदद की। कैसा दोस्त? बस वो बातों से ज़्यादा काम करता है। मैंने बात टाल दी। अम्मा ने ज़्यादा नहीं पूछा, जैसे उनके दिल ने कुछ जान लिया हो, या शायद वो भी खामोशी को समझने लगी थी। अगले चंद दिन इलाज और दवा के दरमियान गुजरे। फाहद अब पहले से ज़्यादा खेलने लगा था। उसकी नींद बेहतर थी और मैं ख़ुद को हर दिन जैसे एक नई दीवार के साइज से निकलता महसूस करती। लेकिन वो जिन ज़्यादा नहीं आया, वही जो मेरी सोच में मुस्तकिल जगह बना चुका था। शायद उसने वक्त दिया था, या शायद फासले का एहतराम। फिर एक दिन अम्मा की तबीयत कुछ बेहतर लगी। सुबह के वक्त वो चारपाई पर टेक लगा कर बैठी थी और चाय की फरमाइश की। मैंने पुरानी केतली से नीम गर्म पानी निकाला और खुश चाय की पत्ती उबालने लगी। इधर आ, कुछ बात करनी है, अम्मा ने कहा। मैंने पास आकर ज़मीन पर बैठते हुए उनकी तरफ देखा। वो मुझे खामोशी से देख रही थी, जैसे दिल के किसी बहुत पुराने कमरे का दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ। तुझे याद है, कुछ दिन पहले तू एक बात कह रही थी, कोई तेरे पास आता है, मदद करता है, खामोशी से? जी अम्मा, मैं जान गई हूँ वो कौन है। मेरी सांस रुक गई। अम्मा ने नज़रें झुका लीं, फिर आहिस्ता से बोली, वो अब इंसानों की शक्ल में शहर में आ चुका है। वो जो कभी साया था, अब शक्ल ले चुका है, और वो तेरे बारे में संजीदा है। अम्मा, ये आपको किसने बताया? कल शाम वो आया था। मैं छत पर धूप ले रही थी। वो सामने वाले दरख्त के नीचे खड़ा था। मैंने पहचान लिया। वही आंखें, वही चेहरा, बस फ़र्क सिर्फ ये था कि वो अब आदमी लग रहा था। और उसने कुछ कहा? हाँ, वो आया, हाथ जोड़कर बैठा और कहा कि उसने तेरा रिश्ता मांगा है, कि वो तेरा साथ चाहता है, कि वो तुझे अकेला नहीं देख सकता। मेरे हलक में कुछ फंस सा गया। अम्मा ने मेरी खामोशी को पढ़ लिया। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा। देख बेटी,
मैं बूढ़ी हूँ पर अंधी नहीं। जो कुछ हुआ उन दिनों में वो सब कोई इंसान भी ना करता। तुझे और फाहद को उसने संभाला बगैर किसी बदले के। लेकिन अम्मा वो, हाँ वो इंसान नहीं था पर अब है, या कम से कम दुनिया उसे अब वैसा ही देखेगी। बाकी फैसला तेरा है। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ कहना मुश्किल था। अम्मा खामोश हो गई लेकिन उनकी आंखें मुझ पर टिकी रहीं। उस रात में बहुत देर तक जागती रही। फाहद की नींद गहरी थी और बाहर खामोशी मुकम्मल। दिल में सवालों का हजूम था और हर सवाल का जवाब सिर्फ एक तरफ जा रहा था, उसकी तरफ। सुबह सूरज निकला तो अम्मा ने एक ही बात की, अगर हाँ है तो खुद बताना, अगर ना है तो भी, पर फैसला तेरा है बेटी, सिर्फ तेरा। दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। मैंने देखा एक कबूतर बैठा था जिसके पर में खत था, सफ़ेद कागज़, सादा लफ्ज़, जो फैसला दिल से करोगी वही मेरे लिए कबूल होगा। मैंने ख़त लपेटा और दरवाज़ा बंद करके पलट आई। फैसले का वक्त करीब था और दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे मगर मेरे दिल में वक्त जैसे ठहर गया था। अम्मा का इलाज चल रहा था। फाहद अब पहले से बेहतर हो चुका था और मेरी सोचों में एक नया शोर बसा हुआ था। वो रोज़ नहीं आता था लेकिन उसकी मौजूदगी की खबर मुझे पहुंच जाती। कभी दरवाजे के पास कोई नरम सा कपड़ा रख जाता, कभी अम्मा की दवाई वक्त पर किसी अनदेखे हाथ से पहुंच जाती, और कभी शाम के वक्त गली के सिरे पर वो दरख्त हिलता जैसे वो वहीं खड़ा हो। उस दिन अम्मा ने मुझे बुलाया जब फाहद दोपहर की नींद में था। वो नींद बैठे अंदाज में चरपाई पर टेक लगा चुकी थी। मैंने उनके लिए पानी का गिलास रखा तो उन्होंने हाथ थाम कर मुझे बिठा लिया। बेटी, कुछ कहना चाहती हूँ, दिल की बात है। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखती रही। उनके चेहरे पर कुछ ऐसी संजीदगी थी जो हर बार नहीं आती थी। तू जानती है, जब तू इस घर में आई थी तो मैंने सिर्फ एक बहू देखी थी, लेकिन वक्त ने दिखाया कि तू सिर्फ बहू नहीं, बेटी है। शौहर गया, दुनिया ने मुंह मोड़ा, लेकिन तू न झुकी न टूटी। अम्मा, मैंने होले से कहा, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे चुप करा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तू वो जिंदगी जिए जो तुझे मिलनी चाहिए थी, वो साथ, वो सहारा जो मैं न दे सकी। क्या मतलब अम्मा? वो लड़का जो अब इंसानों की शक्ल में है, वो तेरे लिए आया है। मैंने उसे देखा, सुना, वो सच्चा है और जो सच में दिखाई देता है वो झूठ नहीं हो सकता। अम्मा, आप जानती हैं ना, वो अलग मखलूक से है। मैं जानती हूँ, पर तू भी तो वही है जिसने एक साय को इंसान माना, उसके दिए फीडर से बच्चे को दूध पिलाया, उसके लाए खाने से भूखी रातें गुजारी। क्या वो सब सिर्फ मजबूरी थी या यकीन? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन थी जो अब तेज़ हो चुकी थी। तो क्या चाहती है कि मैं हाँ कर दूँ? मैं चाहती हूँ कि तू फैसला खुद करे। इस बार न माँ का कहना हो न ज़माने का दबाव, सिर्फ तू हो, तेरा दिल हो और फाहद हो। मैं खामोशी से सर झुकाकर बाहर की खिड़की से झांकने लगी। आसमान साफ था, सूरज की रोशनी सीधी दरख्त पर पड़ रही थी, वही दरख्त जिसके बारे में अब जानती थी कि वो किसी के बचपन की छत था। रात को जब फाहद सो गया, मैं देर तक उसके चेहरे को देखती रही। छोटा सा मासूम सा चेहरा, उसकी सांसें हमवार थी। मैंने खुद से पूछा, क्या ये सब उससे कबूल होगा? क्या वो कभी समझेगा कि उसका बाप इंसान था और अब जो आएगा वो एक और कहानी है? कमरे में फिर वही खामोशी आ गई थी जो किसी फैसले से पहले हुआ करती है। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकली और गली के सिरे तक पहुंची। वो वहीं था, दरख्त के साए में खड़ा, जैसे पहले से जानता हो मैं आऊँगी। आज कुछ कहना है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ। मैं रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, मैंने हाँ कह दी है। कुछ लम्हे वो खामोश रहा, फिर बोला, यकीन से? यकीन शायद वो वक्त बताएगा, लेकिन दिल में जो चल रहा था वो रुक नहीं रहा था। मैंने सोचा, बहुत दिनों से दूसरों के फैसले झेले हैं, ये फैसला मेरा है, तो फिर मैं वादा करता हूँ ये फैसला कभी बोझ नहीं बनेगा। हम कुछ देर एक दूसरे के सामने खड़े रहे, फिर मैं वापस मुड़ गई। कदमों में हल्का सा वजन था, लेकिन दिल में एक अजीब सी रोशनी आ गई थी। अम्मा जाग रही थी। मैंने उनके पास जाकर बैठते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया अम्मा। तो मैं दुआ दूंगी बेटी, जो भी हो तुझे खुशी दे। उनकी आंखों में नमी थी लेकिन चेहरे पर सुकून था। कमरा फिर से खामोश हुआ, लेकिन इस बार वो खामोशी तन्हा न थी, उसमें एक फैसला गूंज रहा था और साथ में एक नई शुरुआत का अक्स भी। दिल अभी भी डर के साए से निकल नहीं पाया था, लेकिन उम्मीद ने दस्तक देना सीख लिया था। रुखसती का दिन आम दिनों से मुख्तलिफ नहीं था,
ना कोई बैंड, ना बारात, ना रसूमात की लंबी कतार। बस अम्मा ने मेरे माथे पर हाथ रखा, फ़ाहद को चूमकर दुआएं दी और कहा, जहाँ जा रही हो अपने दिल का दरवाज़ा खुला रखना। हर रिश्ता पहले इंसान का होता है, फिर मखलूक का। मैंने सादगी से उनके पाँव छुए और फ़ाहद को गोद में उठा लिया। वो खामोश था, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। दरवाजे के बाहर वो खड़ा था, न जिन्हों जैसा कोई वजूद, न साया, न धुआं, सिर्फ एक मर्द जो आंखों में वही गहराई लिए सामने आया जो बरसों का सफ़र तय कर चुकी थी। चलो चलो, मैंने हल्की सी जवाब दिया। हम गली के नुक्कड़ पर आए तो एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी, पुरानी सी लेकिन साफ। उसने दरवाज़ा खोला, मैं फ़ाहद के साथ बैठ गई। हमने किसी को मुड़कर नहीं देखा, न अम्मा को, न पुराने दर दीवार को, शायद इसलिए कि वो सब अब दिल में महफूज था। रास्ता तवील नहीं था, लेकिन खामोश ज़रूर था। उसने गाड़ी नहीं, फ़ज़ा को पढ़ते हुए बात की। मैंने तुम्हें एक अलग जगह पर ले जाना तय किया है, शहर से दूर, लेकिन इतना भी नहीं कि दुनिया से कट जाए। वो जगह तुम्हारी दुनिया से तो नहीं? नहीं, ये जगह इंसानी है। मैंने वो घर खुद बनाया है, हर ईंट, हर दर तुम्हारे ख्याल से जोड़ा है। फ़ाहद का क्या होगा? वो मेरा भी है। मैं उसके लिए वही बनना चाहता हूँ जो कभी मुझे नहीं मिला। गाड़ी एक तंग पगडंडी पर मुड़ गई। आगे सब्ज़ा, खामोशी और पहाड़ी ठंडी हवा ने इस्तकबाल किया। एक छोटा सा सफ़ेद मकान सामने आ गया। दरवाजे पर लकड़ी की तख्ती लटक रही थी, जिस पर हाथ से कुछ लिखा गया था, यहाँ मोहब्बत खामोशी से रहती है। मैंने दरवाजे में कदम रखा तो एक अजीब सा सुकून छा गया। अंदर 3 कमरों का सादा सा घर, पर हर चीज़ साफ तरतीब से रखी हुई। एक कमरे में फ़ाहद के साइज़ का बिस्तर, खिलौने, कपड़ों की छोटी सी अलमारी। ये सब मैंने वक्त से पहले बना लिया था। दिल मान चुका था कि तुम आओगी। किचन में पुराना स्टोव था, चूल्हा गैस का, और अलमारी में हर वो चीज़ जो अम्मा के यहाँ हमेशा ख़त्म हो जाती थी। दूध, चीनी, दवाइयाँ, यहाँ तक कि वही बिस्किट भी जो फ़ाहद ने एक दिन नींद में मांगे थे। तुमने सोचा सब कुछ, है ना? बस तुम्हें नहीं सोच पाया। तुम्हारे जवाब की कीमत जानता था, पर अल्फाज नहीं थे। 2 दिन गुजरे तो अम्मा का ख़त आया। वो किसी पड़ोसी के हाथ भेजा गया था। बेटी, तुमने जो फैसला किया वो तुम्हारी ज़िंदगी का है। अब तुम इस दरवाजे पर मत मुड़ना जब तक कदम पीछे न खींचते जाए। तुम माँ हो, बीवी हो, और अब अपनी नई दुनिया की मालिक हो। जो मिला है उसे थामे रखो, जो छूटा उस पर शुक्र अदा करो। मैंने वो ख़त समेट कर तकिए के नीचे रख दिया। नई ज़िंदगी अजीब नहीं लगी, बस मुख्तलिफ थी। वो खामोशी से हर काम में हाथ बटाता, फ़ाहद के साथ खेलता, अम्मा की दवा वक्त पर याद दिलाता, और हर रात जब चाँद निकलता तो पीछे के सेहन में बैठकर चाय बनाता। ये सब तुम्हें आसान लगता है? नहीं, लेकिन जिस ज़िंदगी में दिल लगा हो वो मुश्किल नहीं रहती। एक रात हम दोनों सेहन में बैठे थे। फ़ाहद कमरे में सो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, जानती हो, मैंने अपनी माँ को आखिरी बार इसी तरह देखा था, रात के आसमान तले, जब वो मेरे लिए दुआ कर रही थी। आज वो दुआ शायद पूरी हो गई। वो तुम्हें देखती होगी शायद, या शायद वो तुम्हारी सूरत में मुझ तक लौट आई हो। खामोशी एक बार फिर हमारे दरमियान फैल गई, लेकिन इस बार वो खामोशी तन्हाई की नहीं थी, एतमाद की थी। हफ्ते गुजरे, मैंने पहली बार फ़ाहद को हंसते हुए देखा, जब वो सेहन में दौड़ते दौड़ते गिरा और उसने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। ना कोई साया, ना कोई खौफ, बस एक बाप की मजबूत बाहों का लम्स। मैंने खुद को आईने में देखा और पहचान लिया। वो चेहरा जो कभी दुख से भरा था, अब नर्म हो चुका था। आंखों में अब भी सवाल थे, लेकिन उनके नीचे रोशनी थी, अंधेरे नहीं। एक शाम मैंने रोज़नामचे की सफ़े पर लिखा, मैंने अंधेरे में एक हाथ थामा था। शायद वो इंसान ना हो, लेकिन उसने मुझे और मेरे बेटे को एक नई रोशनी दी। ये रोशनी खामोश थी, नरम थी, और शायद हमेशा के लिए थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल इंसानियत किसी की मखलूक, ज़ात या हालत से नहीं, बल्कि दिल से पहचानी जाती है। मोहब्बत, हमदर्दी और वफ़ादारी वो जज्बे हैं जो ज़ाहिरी फ़र्क से वालातर होते हैं। अगर कोई साया भी इंसानों से बेहतर निभाए तो वो रिश्ता काबिल एतबार होता है। हमें ये भी सीखने को मिलता है कि मुश्किल वक्त में अगर कोई अनदेखा हाथ मदद के लिए बढ़े तो उसे शक की नहीं, शुक्र की नज़र से देखना चाहिए।